discuss some of the question answers from this chapter, human resources. Like, why are people considered as a resource? People considered as a resource because due to their demands. People demand due to their demands. When we demand something, when we try to obtain. एंड जब हम कुछ भी डिमांड करते हैं तो हमारे पास जो भी होता है हम उसको यूज करते हैं. So this is the reason why human resource of any country should be intelligent, should be capable, capacity to control or convert the natural resources. Then capabilities. And next is, what are the causes for the uneven distribution of population of the world? We have discussed causes means factors affecting. हमने क्या बताना? Factor affecting population. Factors affecting population में हमने क्या बताना? Same like geographical factors, topography, climate, mineral deposits, water, availability of water is there. ठीक है? And then culture में हमने बताना religious and cultural importance. Obviously the places where religious temples or religious places are more, then population will be more there. ठीक है? Then economic causes, in employment opportunities, industries, transportation and communication will be better on those places. Population will be densely as compared to other. Then we have discussed about the world population has grown rapidly. Why world population has grown rapidly? तो हमने ये बताना है कि क्या रीजन होते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया या पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्यों बढ़ती जा रही है. तो ऑटोमेटिकली हम ये कह सकते हैं इसमें दैट Number 1, medical facilities. ठीक है? Improvement in the medical facilities, best health care, medication, then hospitals, dispensaries, government policies for the poor people, medical facilities given to them, old age pension, ताकि old age में लोग उनके पास अगर money होगी तो they can purchase medicines or can have their treatment. ठीक है? Free treatment for you can say children and vaccination, free vaccination camps. Okay, so this is the reason why we can see that in the different parts of the country maybe you can say better food facilities, food supply. ठीक है? Then reduce birth rate. जब birth rate reduce हो जाती है, this is the reason the population that increase in the country. ठीक है? Next we have discussed about the any factors. Discuss the role of any two factors influencing the population change. ठीक है? Yes, raise your hand. Population change. Which are the three factors responsible for the population change? Raise your hands, hurry up. Which are the three factors which are responsible for the population change? Population क्यों change होती है? What is the reason? In any country or in any part of the world, which are the three factors why population changes? Hanji. Yes, Vani. Keep your mic on. Ma'am, the two factors are immigration and immigration. Yes. Okay. Immigration, when a person enters a new country, and immigration when a person leaves a country. नंबर ऑफ पॉपुलेशन हमने बताना है कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ती कम कैसे होती है. बर्थ रेट बढ़ेगी तो पॉपुलेशन चेंज होगा. ठीक है? डेथ रेट में किसी भी तरह से इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो पॉपुलेशन चेंज होगा. माइग्रेशन ज्यादा होगी तो पॉपुलेशन चेंज होगा. इमिग्रेशन होगी, इमाइग्रेशन होगी. तो ये सारे फैक्टर्स हैं. these are responsible for the population changes. Okay? Next is what is meant by population composition? Population composition क्या होती है? Population composition. What is the meaning of population composition? जब हम पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो सेम ही है जो हमने पिरामिड में जिसको एक्सप्लेन किया. पिरामिड में हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दैट इज कॉम्पोजिशन. किसी कंट्री में पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन से मतलब क्या होता है? यस, रेज योर हैंड्स. जो हमने पॉपुलेशन पिरामिड में जिसको ग्राफिकल की फॉर्म में लिखा है वो क्या होता है? पॉपुलेशन पिरामिड जो होता है. पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन? कॉम्पोजिशन. किसी कंट्री में पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है बेटा? हाँ जी, रेज योर हैंड्स. कितने परसेंट मेल हैं, कितने परसेंट फीमेल हैं? दैट इज कॉम्पोजिशन. एज ग्रुप कितना है?
कितने परसेंट अब बिलो 15 है, कितने परसेंट अबव 15 है, कितने परसेंट अबव 65 है, दैट इज कॉम्पोजिशन। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, वी मीन स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एज, वेदर दे आर मेल और फीमेल। ठीक है, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन इन विच वी कंसिडर एज ग्रुप्स कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जांपल बिलो 15 इयर्स, देन अबव 15 इयर्स टू 65, देन अबव 65 इयर्स। किसी कंट्री में पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, पॉपुलेशन जो है वो कंपोजिशन कैसा है, जब हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन पिरामिड। तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर और कंपोजिशन। मेल और फीमेल कितने, अगर हम कहते हैं कि हमारी कंट्री में कितने परसेंट मेल हैं, कितने परसेंट फीमेल है, देन वी आर टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन कंपोजिशन। इट मींस स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। इज इट क्लियर? Is it clear? The meaning of population composition is clear? Okay, thank you बेटा। हाँ जी, next is what are the population pyramid? Same जो composition में हमने डिस्कस किया उसी को ही हमने बता देना है कि इसको graphical representation में कहते हैं ना। What is the meaning of population pyramid? Yeah, and how do they help in understanding about the population of a country? Population pyramid क्या होता है, मैंने सारा ये टॉपिक करवाया हुआ है कि पॉपुलेशन पिरामिड का मीनिंग और इससे हम किसी कंट्री की पॉपुलेशन का कैसे आइडिया लेते हैं। तो इसमें आप किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन पिरामिड का एग्जांपल दे सकते हो, उसका मीनिंग आपने बताना है और ये बताना है कि पॉपुलेशन पिरामिड जो है उसमें एज जो कॉम्पोजिशन होती है या वर्किंग एज है वो कैसे डिवाइड होती है। एंड हु विल गिव द आंसर? रेज योर हैंड्स। हाँ जी बेटा, गिव द आंसर, रेज योर हैंड्स। सबसे पहले आपने मीनिंग बताना है पॉपुलेशन पिरामिड, आफ्टर दैट हाउ दीज हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कंट्री। हम किसी कंट्री के पॉपुलेशन पिरामिड से उस कंट्री के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में क्या अंडरस्टैंड करते हैं। रेज योर हैंड्स। मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड। हाँ जी अवनी, कीप योर माइक ऑन बेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड? Ma'am, it is a graphical representation of the number of different age groups and males and females. हाँ, इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बताना है इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्यों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? क्यों? क्योंकि हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऑफ मेल एंड फीमेल एंड वेरियस एज ग्रुप्स। दो चीजें मेन हम इसमें बताते हैं, एक बताते हैं एज ग्रुप्स, एक बताते हैं मेल और फीमेल। जब हम एज ग्रुप्स की बात करते हैं तो सेकेंड पॉइंट में आप क्या बताओगे, कैसे इसको डिफाइन करोगे? एज ग्रुप्स कौन कौन से एज ग्रुप्स? हाँ जी, 3 टाइप्स ऑफ एज ग्रुप्स। विच आर द 3 एज ग्रुप्स? हाँ जी Ma'am, below 15, then ma'am above 15, and then ma'am old age, that is till 75. डिपेंडेंट जो होते हैं, डिपेंडेंट, उनको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने क्या बताना है, दैट पॉपुलेशन पिरामिड इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इन विच एज ग्रुप एंड मेल एंड फीमेल दैट रिप्रेजेंटेशन इज शोन। फिर हमने क्या बताना है, द शेप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड हेल्प टू अंडरस्टैंड अबाउट द पॉपुलेशन। शेप का मतलब क्या होता है, अगर तो ब्रॉड बेस है, अगर तो किसी पॉपुलेशन के पिरामिड का ब्रॉड बेस है तो इट मीन्स पॉपुलेशन हाई है। ठीक है, और अगर ऊपर जाते जाते ये नैरो हो जाती है इट मीन्स डेथ रेट जो है वो रिड्यूस हो रही है। ठीक है, और अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन पिरामिड मिडल में जैसे हम कहते हैं जापान है मिडल में, और जैसे इंडिया है मिडल में, ये जो है वो बॉटम और मिडल में बराबर ही रहती है। इसका मतलब क्या है कि जो बिलो 15 है वही आगे जाकर वर्किंग एज में पहुंचते हैं। इट मीन्स उस कंट्री में इन्फेंट जो डेथ रेट है वो नहीं होता, यानी कि जो बच्चों का बर्थ होता है यही बच्चे आगे जाकर वर्किंग एज में पहुंच जाते हैं। इट मीन्स वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज प्रॉपर है। कीनिया जैसी कंट्री में क्या है, बर्थ रेट का जो बेस है, नीचे से देखा जाए पिरामिड का बेस है बिलो 15 इयर्स, वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है लेकिन ऊपर जाकर नैरो हो जाता है, जिससे ये पता लगता है कि जैसे जैसे बच्चे 15 को क्रॉस करते हैं या कहीं 15 तक भी पहुंच नहीं पाते हैं तो मे बी वहां पे लेस मेडिकल फैसिलिटीज हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई जो है वो मेडिकल केयर नहीं है। दिस इज द रीजन कि वर्किंग एज बहुत कम है और आगे जाकर डेथ रेट जो है वो बहुत हाई है। कीनिया जैसी कंट्री में डेथ रेट हाई है, वही रीजन है। अगर बच्चों को मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिल रही है तो ओल्ड एज को भी नहीं मिल रही है। ठीक है, लेकिन जापान जैसी कंट्री का जब हम पिरामिड देखते हैं तो आप देखते हो कि 85+ पीपल कैन सर्वाइव। इट मीन्स इन दोज कंट्रीज
बिलो 15 जो हैं वो वर्किंग एज तक पहुंच जाते हैं, वर्किंग एज आगे 85 तक सर्वाइव कर सकते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जापान जैसी कंट्रीज में बहुत ज़्यादा है, मे बी वहाँ पे पोल्यूशन कम है, ठीक है, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज ज़्यादा हैं, फूड शॉर्टेज नहीं है, और हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे बच्चों के लिए प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, वैक्सीनेशन प्रॉपर होगा, वहाँ पे माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम नहीं है, बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं होंगे, तो सारी भी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है वो वहाँ पे नहीं होंगी। तो इसके बेसिस के ऊपर हम किसी भी कंट्री का एग्जाम्पल जो है वो दे सकते हैं। अ कंट्री इन विच बर्थ एंड डेथ रेट आर हाई, अगर किसी कंट्री में बर्थ और डेथ रेट हाई होता है, ठीक है, और बेस जो है वो बहुत ब्रॉड है, और इसका मतलब क्या है कि उस कंट्री में कहीं ना कहीं जो है वो पॉपुलेशन जो है वो हाई हो रहा है। ऐसी कंट्री जापान जैसी कंट्रीज जहाँ पर बर्थ रेट इतना बेस जो है वो ब्रॉड नहीं है, इट मीन्स वहाँ पे बर्थ रेट लो है। जापान जैसी कंट्रीज में बर्थ रेट लो का मतलब क्या है कि वहाँ पर जो है पीपल दे आर वेरी मच अवेयर, एंड नंबर ऑफ पॉपुलेशन, जो साइज ऑफ पॉपुलेशन है वो कम है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, ठीक है। अब देखा जाए तो इंडिया जैसी कंट्रीज या बांग्लादेश जैसी कंट्रीज, एक ही फैमिली में कितने कितने जो है लाइक पीपल दे आर नॉट अवेयर अबाउट द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है, एंड सम फैमिलीज यू कैन से 7 और 8 चिल्ड्रन आर देयर। लेकिन जापान जैसी कंट्रीज में फैमिलीज दे आर वेरी लिटरेट एंड अवेयर, तो उनको पता है कि अगर पॉपुलेशन जो है वो एक्सप्लोजन होगा तो अल्टीमेटली इसका बर्डन जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर या कंट्री के ऊपर ही होगा, ठीक है। तो ऐसी कंट्रीज जिन कंट्रीज में प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं वहाँ पर प्रॉपर लोग जो है वो जाना प्रेफर करते हैं। ऐसी कंट्रीज जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होती वहाँ से फिर ई माइग्रेशन हो जाती है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस। एनी डिस्कशन यू वांट रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन you want to ask or any doubt? हाँ जी बेटा। Okay, so I am going to revise this chapter again. स्टार्टिंग से हम सेम जो हमारा अभी तक कवर हुआ है मैं इसको फिर से रिवाइज करवा रही हूँ, बिकॉज वी हैव completed question answers and you will write all the answers, question answers in your notebook, clear? And with this we have covered our syllabus. Now we will start revision here. Yes, now whatever we have completed in this chapter, now I'm going to revise again. Okay, human resources. In this chapter, first of all, we have discussed the meaning of human resources. Human resource मतलब people as a great source. लोग किसी country का resource क्यों हो सकते हैं? क्योंकि लोग डिमांड करते हैं, उनमें कैपेबिलिटीज होती हैं, ठीक है, वो किसी भी पर्टिकुलर जो रिसोर्स है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इंटेलिजेंट आइडियाज बाय यूजिंग देयर ब्रेन, ठीक है। तो किसी कंट्री का ह्यूमन रिसोर्स जो है हेल्दी, एजुकेटेड, इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी, ठीक है। देन आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? हाउ पॉपुलेशन हैज स्प्रेड अमंग द डिफरेंट पार्ट्स। पैटर्न यानी कि जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है या वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो कैसे स्प्रेड, का मतलब क्या है, कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कुछ कंट्रीज लाइक इन इंडिया, चाइना, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइवन है, बट इन मैनी कंट्रीज पॉपुलेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है दैट इज वेरी लेस। रीजन, इसके रीजन क्या होते हैं वो हमने किसमें किए थे? फैक्टर्स, जिसको हम क्या कहते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन। कौन कौन से फैक्टर्स डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं? इसका मतलब क्या है? इसके लिए हमने क्या अपने माइंड में रखना है कि कहाँ पे पॉपुलेशन डेंस, कहाँ पे डेंस, उसके कंपैरेटिवली क्या होगा? लो। इफ वी आर राइटिंग हियर थिकली, व्हाई इन सम ऑफ द एरियाज पॉपुलेशन इज थिकली, तो दूसरी तरफ क्या है? व्हाई पॉपुलेशन इन सम एरियाज इज थिन, थिनली। थिनली, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखते हैं मोर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्पार्सली, लेस। ये है डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाई इन सम एरियाज पॉपुलेशन इज डेंस, व्हाई इन सम एरियाज पॉपुलेशन इज लो और थिनली। तो इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स? सेम हमने क्या बताना है? ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चर, ठीक है। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, सोशल, सोशियो
इकोनॉमिक एंड कल्चरल। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, इसमें हमने सारा ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है, ठीक है। टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। यानी कि जिन एरियाज में इनकी अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, टोपोग्राफी अच्छी होगी, फॉर्म्स एंड फीचर्स अच्छे होंगे, वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी। क्लाइमेट सुटेबल होगा, क्लाइमेट अगर मॉडरेट होगा वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी। सॉइल अगर फर्टाइल होगी तो वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी। वाटर अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी तो वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी। एंड मिनरल डिपॉजिट्स होंगे तो वहां पे ज्यादा होंगी, एक्सट्रैक्शन माइंस होगी और लेबर की डिमांड ज्यादा होगी तो वहां पे नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा होगा। सोशल, अगर सोसाइटी की बात करें तो हम जब भी कहीं जाते हैं तो हम देखते हैं कि नेबरहुड कैसा है, ठीक है, और वहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटीज हैं, हेल्थ फैसिलिटीज हैं, तो ये सारा जो है वो भी, हाउसिंग पैटर्न कैसा है, ठीक है, तो ये सारा भी मैटर करता है कि हम सोसाइटी यानी कि सोशियो फैक्टर्स क्या होते हैं कि जहाँ पर हमें अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज मिलती हैं, अच्छी मेडिकल केयर मिलती है और हाउसिंग प्लान बेटर होता है, क्लैनिनेस होती है, पॉल्यूशन जो है वो नहीं होगा, तो वहाँ पर क्या है, सोशियो यानी कि सोशल फैक्टर्स। इकोनॉमिक रिलेटेड टू विच, इकोनॉमिक में हम बताएंगे जैसे फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, जहाँ मार्केट फैसिलिटी ज्यादा है, ऑब्वियसली वहाँ पे नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा होगा। कल्चरल है, रिलीजियस, जहाँ पे रिलीजियस प्लेसेस होते हैं वहाँ पे लोग वर्शिप, पिलग्रिम्स जो है उनका मोटिव ये होता है, तो मे बी नंबर ऑफ पॉपुलेशन वहाँ पे भी ज्यादा होता है। दीज आर द different reasons. Other than that, we have also covered density. What is the meaning of density? Density का मतलब होता है number of people living per square kilometer. एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो देखा जाए अगर एक स्क्वायर किलोमीटर में इंडिया में 352 हैं, ठीक है, सॉरी 382 है ना, तो अगर हम देखें कि कोई पर्टिकुलर एरिया है 50 किलोमीटर, यानी कि वो पूरा एरिया 50 किलोमीटर कवर करता है, तो 1 किलोमीटर में अगर 382 है तो उस एरिया की पॉपुलेशन क्या होगी, 382 मल्टीप्लाई बाय 50, तो अप्रोक्सीमेटली उस एरिया की पॉपुलेशन इतनी है, ठीक है। लेकिन अगर किसी एरिया में एवरेज यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर सिर्फ कितने लोग हैं, 12 हैं, ठीक है, इट मीन्स यही एरिया या तो माउंटेन एरिया हो सकता है या डेजर्ट एरिया हो सकता है, ठीक है, यहाँ या जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी बहुत कम है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम मैंने 12 कहा तो 12 मल्टीप्लाई बाय 50, तो इट मीन्स वहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ इतनी ही है, ठीक है। तो डेंसिटी से हमें क्या पता लगता है कि उस एरिया की पॉपुलेशन का नंबर क्या है, मोर है या लेस। इसके बाद फिर हमने किया था पॉपुलेशन चेंजेस। पॉपुलेशन चेंजेस का मतलब है कि पॉपुलेशन में चेंज कैसे आ सकता है, which are the factors responsible, birth rate, death rate, माइग्रेशन, आगे माइग्रेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इमिग्रेशन, ठीक है, और ई माइग्रेशन। इमिग्रेशन या ई माइग्रेशन, population changes, factors which are responsible for population change, ठीक है, बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, माइग्रेशन को आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इमिग्रेशन या ई माइग्रेशन। तो बर्थ रेट क्या होती है, सबसे पहले बर्थ रेट, नंबर ऑफ बर्थ, इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ बर्थ चाहे मेल है चाहे फीमेल है, पर 1000 पीपल, पर 1000 पीपल का मतलब होता है किसी एरिया में अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे कितने बच्चों का बर्थ हुआ है, अगर हम एक दिन की बात करें या वीक की बात करें कि बर्थ रेट क्या है, सपोज हम 2 एरियाज को कंपेयर कर रहे हैं, एक तरफ है इंडिया और एक तरफ है चाइना, ठीक है, तो इंडिया में बर्थ रेट हाई है और चाइना में बर्थ रेट जो है वो हाई है, और कितने परसेंट, हम कैसे इसको कहेंगे कि इंडिया में हर 1000 के पीछे हर रोज कितने बच्चों का बर्थ होता है, और चाइना में हर 1000 के पीछे हर रोज कितने बच्चों का बर्थ होता है, ठीक है। इट मीन्स अगर चाइना में ये ज्यादा है, अगर इसका नंबर जो है वो 100 है, इंडिया में ये क्या है, अगर सपोज 70 है, इसका मतलब क्या है, बर्थ रेट चाइना की ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया, यानी कि चाइना में बर्थ रेट ज्यादा है, वहां पे हर 1000 के पीछे हर रोज जो है वो सपोज 50 या 60 बच्चों का बर्थ हो रहा है, इंडिया में सपोज 30 या 20। तो इसी तरह से हमें अलग अलग कंट्रीज की बर्थ रेट को कंपेयर करते हैं तो हम जो है वो एस्टिमेट करते हैं रिगार्डिंग द पॉपुलेशन। आगे आ जाओ डेथ रेट। डेथ रेट क्या होती है,
डेथ रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल, यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया में जब हम काउंट करते हैं तो 1000 के पीछे हर रोज कितने लोगों की डेथ हुई, ठीक है। सपोज अब हम सेम कंपेयर करते हैं इंडिया और चाइना। सपोज अगर हम कहते हैं कि चाइना में डेथ रेट जो है, ठीक है, हर 1000 के पीछे 100 है, ठीक है। इंडिया में क्या है, 80 है। इसका मतलब क्या है, चाइना में ज्यादा लोगों की डेथ हुई है तो चाइना का डेथ रेट जो है वो क्या होगा, हाई। इंडिया में चाइना से कम है तो चाइना और इंडिया के कंपैरेटिवली इंडिया की डेथ रेट जो है दोनों के कंपैरेटिवली लो होगी, ठीक है, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ डेथ ज्यादा है और यहाँ पे नंबर ऑफ डेथ कम है, तो ऑटोमेटिकली उनकी डेथ रेट जो है, ठीक है, वो हाई होगी एज कम्पेयर टू आवर कंट्री। तो इससे भी हमें किसी कंट्री की पॉपुलेशन चेंज के बारे में पता लगता है। इसके अलावा आपने बताना है वर्ल्ड की पॉपुलेशन कैसे चेंज हुई ईयर वाइज। 1800 के टाइम पीरियड में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा चेंज नहीं, धीरे धीरे 1959 3 बिलियन हुई और एक ऐसा ईयर आया 1999 जिसमें पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कहाँ तक पहुंच चुकी थी, 6 बिलियन। और अब सोचो 1999 में अगर 6 बिलियन होगी तो अब क्या होगी, यानी कि 2022 में पॉपुलेशन, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कहाँ तक पहुंच गई है, तो दैट इज अ पॉपुलेशन चेंज, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, एक्सपेक्टिंग एज, एवरेज का मतलब अगर मैं दो कंट्रीज की कंपैरिजन हम जैसे करते हैं, जापान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि जापान में एक एवरेज ये कॉमन पीपल जो है वो उसकी जो है वो लाइफ कहाँ तक उसकी लाइफ है, इज इट 60, इज इट 65, इज इट 70, ठीक है। अगर किसी भी कंट्री में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है कम होती है, कम का मतलब है अगर 40 है या 35 है, इट मीन्स उस कंट्री में मेडिकल फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं है, वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं है, डिस्पेंसरीज नहीं है, और अगर हेल्थ चेकअप्स या ऑपरेशंस या वट जो भी मेडिकल फैसिलिटीज कॉस्टली हैं, प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा है, तो ऐसी कंट्रीज में क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कम होती है, ठीक है। तो ये एक टर्म हमने डिस्कस की थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। फिर आ जाइए, नेक्स्ट है पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज में हमने क्या बताना है कि पॉपुलेशन चेंज का पैटर्न क्या होता है। कीनिया जैसी कंट्री में बर्थ रेट हाई है तो वहाँ पे पॉपुलेशन रेट ऑफ ग्रोथ जो होता है वो हाई होगा, ठीक है। और यूके जैसी कंट्रीज वहाँ पे बर्थ रेट लो है, तो इट मीन्स वहाँ पे पॉपुलेशन रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो लो होगा, ठीक है। तो इसी को हम पॉपुलेशन जो है वो कॉम्पोजिशन के बेसिस के ऊपर हम पढ़ते हैं। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि जिसमें हमें किसी कंट्री में कितने परसेंट मेल हैं, कितने परसेंट फीमेल हैं, कितने परसेंट वर्किंग एज हैं, कितने परसेंट जो है वो लिटरेट हैं, कितने परसेंट इलिटरेट हैं, ये कैसे पता लगता है, ये हमें सारा पता लगता है सेंसस। सेंसस क्या होता है, काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन। काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन जो है लाइक हमारी कंट्री में सेंसस हर 10 ईयर्स के बाद करवाया जाता है, जिसमें जब भी पॉपुलेशन काउंटिंग होती है, सिर्फ काउंटिंग ही नहीं बल्कि प्रॉपर डाटा जो है वो सारा फिल किया जाता है, जिसमें हर फैमिली की सारी इंफॉर्मेशन ली जाती है। इंफॉर्मेशन इन द सेंस कितने परसेंट मेल हैं, कितने परसेंट फीमेल हैं, कितने परसेंट जो है वो कितने बच्चे हैं, कितने वर्किंग एज है, कितने ओल्ड एज हैं, तो हमें जो है वो पॉपुलेशन पिरामिड के लिए आइडिया मिल गया, ठीक है। इसके अलावा कितने परसेंट लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं, ठीक है। हेल्थ कंडीशन, उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, आर दे सेटिस्फाइड फ्रॉम द गवर्नमेंट, और फाइनेंशियल उनका उनका जो है वो स्टेटस क्या है, या इकोनॉमिक उनका जॉब क्या है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। तो इस तरह के सारे फैक्टर्स जो हैं उनको सारा कैलकुलेट करके किसी कंट्री की जो है वो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन के बारे में प्रॉपर जो है पॉपुलेशन सर्वे करवाया जाता है। तो इसके लिए प्रॉपर सेंसस सर्वे होता है, डिपार्टमेंट होता है जिसमें अलग अलग गवर्नमेंट स्टाफ की ड्यूटीज लगती हैं, तो सारा प्रॉपर कंप्लीट किया जाता है। देन इज पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड हमने 3 कंट्रीज का पॉपुलेशन पिरामिड डिस्कस किया था, नंबर 1 कीनिया, नंबर 2 इंडिया, नंबर 3 जापान। कीनिया का जो पॉपुलेशन पिरामिड है इसमें हमें नंबर 1 नीचे से कहना है कि बर्थ रेट बहुत हाई होती है, इसका बेस जो है वो बहुत ब्रॉड है, जो ये शो करता है कि नंबर ऑफ मेल, नंबर ऑफ फीमेल, ठीक है, उनकी बर्थ रेट हाई है, ठीक है। नंबर 2 फिर हमने बताना है नैरो टुवर्ड्स टॉप। नैरो टुवर्ड्स टॉप का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे वर्किंग एज यानी कि जो बच्चे हैं वो 15 से आगे वर्किंग एज में जाते हैं, तो
बहुत जो है वो लॉस है। लॉस का मतलब क्या होता है कि पहुंच नहीं पाते, उनकी डेथ हो जाती है, तो वो प्रॉपर वर्किंग एज तक नहीं पहुंच पाते, नंबर ऑफ वर्किंग एज कम होता जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाई एंड फ्यू बिकम अब अडल्ट, बहुत कम है जो अडल्ट बनते हैं। और इसका रीजन क्या हो सकता है, मे बी लेस मेडिकल फैसिलिटीज गिवन बाय द गवर्नमेंट और वैक्सीनेशन सर्विसेज प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट, मे बी दीज आर नॉट प्रॉपर। उसके बाद जब और टॉप में हम देखते हैं, टॉप में हम देखते हैं कि डेथ रेट इज वेरी हाई। कीनिया जैसी कंट्री में डेथ रेट बहुत हाई है, और आगे जाकर ये बिल्कुल जो है वो पिरामिड जो है वो बिल्कुल जो है वो टॉप पे पॉइंटेड हो जाता है, जो शो करता है कि लेस नंबर ऑफ ओल्ड पीपल रीच अबव 65, यानी कि 65 तक पहुंचते पहुंचते बहुत कम है जो लोग जो हैं वो ओल्ड एज में आते हैं। रीजन ये है कि वो नहीं सरवाइव कर पाते, गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर फैसिलिटीज उनको नहीं मिलती हैं, या हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर टेक केयर नहीं है। ठीक है, तो ये है सारा कीनिया के बारे में पॉपुलेशन पिरामिड। नेक्स्ट आ जाओ इंडिया। इंडिया के बारे में जब हमने बताना है, इंडिया का बताएंगे कि पॉपुलेशन पिरामिड नीचे से जो है कीनिया की तरह ब्रॉड नहीं है, उससे कम ब्रॉड है। इसका मतलब है कि और जो बेस है यानी कि 15 इयर्स और वर्किंग एज, अगर आप पॉपुलेशन पिरामिड देखोगे ना इंडिया का, जो 15 इयर्स और वर्किंग एज का जो है, ठीक है, वो 15 से वर्किंग एज में पहुंच जाते हैं, वर्किंग एज में पहुंच जाते हैं, वो थोड़ा थोड़ा कम है पर कीनिया की तरह नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारी कंट्री में लेबर यानी कि जो वर्कर्स हैं above 15 they are strong, they are more as compared to other, ठीक है, अदर कंट्रीज। इसका मतलब है हमारी इंडिया में लेबर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, नंबर ऑफ पीपल बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, वर्किंग एज जो है 15 से ज्यादा, उनका नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है। और आगे जाकर मतलब अगर देखा जाए डेथ रेट हमारी कंट्री के ऊपर, कीनिया के कंपैरेटिवली हमारी कंट्री में जो इसकी एवरेज एज जो है दैट इज 75 प्लस, एवरेज 75 प्लस है। ठीक है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है हमारी कंट्री में, ओल्ड एज है क्योंकि हमारी कंट्री में गवर्नमेंट की तरफ से ओल्ड एज पेंशन दी जाती है, फैसिलिटीज जो है वो दी गई हैं। नो डाउट हमारी कंट्री पॉपुलेशन वाइज नंबर 2 है, बट स्टिल स्ट्रॉन्ग लेबर फोर्स के कारण हमारी कंट्री जो है पूरे वर्ल्ड में, आप खुद देखो कि हमारी कंट्री में एनआरआई कंपनी जो है, मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो यहाँ पे आकर इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज प्लांट लगा रही हैं, तो मे बी यहाँ पे लेबर जो है वो उनको चीप मिल जाती है, लेबर जो है वो दैट इज मोर एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ठीक है, कई कंट्रीज में शॉर्टेज ऑफ लेबर फेस करना पड़ता है। क्या रीजन है कि शॉर्टेज ऑफ लेबर होता है, क्या रीजन होता है ऐसी कंट्रीज में जहाँ पे शॉर्टेज ऑफ लेबर होता है, क्यों? अगर मैं आपको ये कहती हूँ किसी कंट्री में शॉर्टेज ऑफ लेबर है, क्या रीजन हो सकते हैं? वहाँ पे लेबर कम है, हाँ जी, उनको दूसरी कंट्री से लेबर मंगवानी पड़ती है, इंसेंटिव्स देना पड़ता है दूसरी कंट्री, क्योंकि उन कंट्रीज में लेबर कम है, उन कंट्रीज में वर्किंग एज कम है। क्या रीजन है? व्हाई देयर इज अ शॉर्ट ऑफ वर्किंग एज इन मैनी कंट्रीज? हाँ जी, टेल मी, yes, raise your hands. Why in some countries there is a short of labor and they have to invite labor from other countries, उनको दूसरी कंट्री से लेबर इनवाइट करनी पड़ती है, इंसेंटिव्स देने पड़ते हैं। व्हाट इज द रीजन? अब देखो इंडिया से हमारी कंट्री में बहुत से लोग फॉरेन कंट्रीज आ रहे हैं, वहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, वाई बट व्हाट आर द मेन रीजन? उन कंट्रीज में लेबर फोर्स कम है, क्या रीजन हो सकता है? हाँ जी, यस अनवे, हाँ जी बेटा, कीप ए माइक ऑन। यस मैम, हाँ जी, वहाँ पे वर्किंग क्लास कम है। वर्किंग क्लास कम है, ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, तो वी इंडियंस yes, कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। मे बी वहाँ पे वर्किंग कंडीशन जो है तो वहाँ पर प्रॉपर जो है वो क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी एक्सट्रीम है। और क्या रीजन हो सकता है? पॉपुलेशन, वर्किंग एज कम है। ठीक है, और क्या रीजन हो सकता है? क्या रीजन हो सकता है वहाँ पे? ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। ठीक है, अब देखा जाए वेज नहीं, हाँ जी, वेजेस नहीं ठीक देते हैं। ओके, वेजेस, हाँ वेजेस हो सकते हैं। ठीक है, मे बी, अब हाँ सपोज टुडेज वर्ल्ड मैनी कंट्रीज, in many countries people they are migrating, like from India, for example from India students are going to foreign countries because they think themselves that there are more employment facilities,
एज कम्पेयर टू इंडिया। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि नो डाउट हमारी कंट्री में वर्किंग इंटेलिजेंट जो पीपल है वो बहुत ज्यादा है, अबव 15 है। तो समटाइम्स ड्यू टू गवर्नमेंट नेग्लिजेंस, ड्यू टू यू कैन से शॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, so people they are not getting the employment facilities, they are not getting jobs, so that's why they are leaving our country, they are going abroad, वो abroad जा रहे हैं, ठीक है। और कई बार क्या होता है करेंसी, लाइक अगर देखा जाए वैल्यू ऑफ रूपी एंड डॉलर, तो जो लोग हैं वो डॉलर और रूपी को कंपेयर करते हैं तो उनको ये लगता है कि डॉलर की वैल्यू ज्यादा है, तो व्हेन दे विल गो देयर तो दे विल बी हाईली पेड एंड दे कैन कन्वर्ट डॉलर इनटू रूपी, ठीक है। और ऑब्वियसली जब यहाँ पर आकर डॉलर्स को कंपेयर करेंगे रुपये के साथ तो उनको ज़्यादा ही लगेंगे। तो कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिसके कारण जो लोग हैं, कई कंट्रीज में लेबर फोर्स कम होती है, तो उन कंट्रीज में जो उनकी गवर्नमेंट जो होती है वो बाकी कंट्री से लेबर को जो है वो इंसेंटिव्स देते हैं अपॉइंट करने के लिए या इनवाइट करते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था जापान के बारे में। जापान का जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो बर्थ रेट लो है, ठीक है। बर्थ रेट लो, यहाँ पे देखोगे बेस दोनों कंट्रीज के कंपैरेटिवली यहाँ पे बर्थ रेट लो है। उसके बाद वर्किंग एज बहुत ज्यादा है। वर्किंग एज का मतलब क्या होता है कि जो अबव 15 हैं, ठीक है, इट मींस दे कैन सर्वाइव, मतलब जो वर्किंग जो मतलब है बर्थ रेट है, जिनका जितने बच्चों का बर्थ हुआ तो बहुत रेयर है अगर किसी की डेथ होती है, अदरवाइज वर्किंग एज स्ट्रॉन्ग है। तो यही रीजन है जापान की इंटेलिजेंट पॉपुलेशन जिन्होंने टेक्नोलॉजी को अपना वेपन बनाया। जापान में नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन जापान ने टेक्नोलॉजी को अपना वेपन बनाया और टेक्नोलॉजी की हेल्प से उन्होंने अपनी कंट्री को डेवलप कंट्री बनाया, ठीक है। एंड डेथ रेट जो है वो कम है, जो ये शो करता है कि 85 प्लस पीपल भी हैं वहाँ पे। इसका मतलब क्या है, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज हैं, पॉल्यूशन जो है पॉल्यूशन फ्री कंट्री है। एंड जापान जैसी कंट्री बहुत रेयर है। आपने सुना होगा, अगर आपने सुना होगा कि लोग जो है वो मेन कहाँ जाते हैं, अमेरिका जा रहे हैं, यूएसए जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, न्यूजीलैंड जा रहे हैं। जापान जैसी कंट्री ने अपने आप को ओपन नहीं किया है। ओपन का मतलब होता है बहुत रेयर है। इज देयर एनीवन हु नो, आपको है आपके कोई रिलेटिव जो जापान गए जिनको जापानीज सिटीजनशिप मिली है? इज देयर एनीवन? हाँ जी अवनी। यस, कीप ए माइक ऑन। No, ma'am. नो, व्हाई, व्हाट आर द रीजन? आपने सुना है यूएस सिटीजन, यूएस की सिटीजन मिल गई है, लोग यूके जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, बहुत कम है जो जापान जाते हैं। और जापान की तो सिटीजनशिप भी नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट सिटीजनशिप ऑफ जापान, क्योंकि जापान जैसी कंट्री जो है वो इजीली सबको सिटीजनशिप नहीं देती है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत टफ हैं। और जापान ने अपनी सिटीजनशिप को ओपन नहीं किया है, सिर्फ लोग वहाँ पे जाते हैं लेकिन परमानेंट रेजिडेंस नहीं है वहाँ, ठीक है। ये है इसका रीजन कि जिसके कारण जापानीज जो हैं दे आर वेरी यू कैन से कमिटेड टू देयर ओन कंट्री, ठीक है। तो कई बार क्या होता है गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस वो भी बहुत इफेक्टिव होते हैं और इसीलिए मे बी उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो इतनी नहीं बढ़ पाई है। एंड जितनी पॉपुलेशन है उन्होंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग इनफ किया है कि वो अपनी कंट्री को प्रॉपर डेवलप बनाए, ठीक है। दिस इज द रीजन। बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जिन कंट्रीज की इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी है। क्लोज इकोनॉमी का मतलब उन कंट्रीज की सिटीजनशिप लेना बहुत मुश्किल होता है और बहुत रेयर है कि लोग वहां पे जाते हैं। तो वो सिर्फ उतने ही जितनी उनकी पॉपुलेशन है वो उसी पॉपुलेशन को ही प्रॉपर जो है वो कंट्रोल करते हैं, अपनी कंट्री को डेवलप करते हैं। तो हर कंट्री की गवर्नमेंट पॉलिसीज का भी डिपेंड करता है कि वो कितना ओपन का मतलब होता है कितना बाकी पॉपुलेशन को आने देते हैं अपनी कंट्रीज, ठीक है। अब जापान की तो अपनी वर्किंग फोर्स इतनी ज्यादा है, उनको तो लेबर की जरूरत है ही नहीं है, उनकी तो अपनी वर्किंग फोर्स इतनी ज्यादा, उनको तो दूसरी कंट्रीज की लेबर की जरूरत है भी नहीं, ठीक है। तो उन्होंने अपनी कंट्री को इतना स्ट्रांग बनाया है, डेवलप कंट्री बनाया है। तो ऑल दीज फैक्टर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द यू कैन से इंक्रीज और डिक्रीज इन एनी कंट्रीज पॉपुलेशन। So whatever we have discussed in this chapter, human resources, read the chapter thoroughly. Each and every term, word should be clear to you. And we have discussed back exercise, fill-ups, to and the tick the correct answers and question answers, and complete all the question answers. Write in a notebook and send your notebook for checking. There, if any doubt is there, then you can ask. Hurry up.